لیکن اگر وہ ایمان والے نہیں، نبی کے وفادار نہیں ہیں، تو اس کا صلہ، اس کا جزا اسی دنیا میں دیکھیں گے، کل میدان محشر میں ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ جو ایمان والے ہیں انہیں کے لیے کل میدان محشر میں اجر ہے۔ تو پتہ چلا مسلمانوں، ہم اور آپ اگر تھوڑا سا بھی کوئی عمل کریں گے تو کل میدان محشر میں دیکھیں گے۔ اس سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ بندہ بعض اوقات کوئی کام ایسا نیک کام کرتا ہے جس کو سمجھتا ہے یہ معمولی ہے، لیکن وہ رب کے نزدیک اس کے لیے نجات کا سامان بنے گا، اور کوئی بری بات ایسا کوئی بندہ کرتا ہے جس کو سمجھتا ہے معمولی ہے، لیکن کل وہ جہنم کے ٹھکانے کا سبب بنے گا۔ تو بندے کے لیے ضروری ہے کسی عمل کو کمتر نہ سمجھے، بندے کے لیے ضروری ہے کہ کسی بھی اچھے عمل کو جب بات آ جائے تو اسے چھوڑے نہ۔ اے مسلمانوں، شہزاد بھائی نے اپنے والدین کے لیے سال ثواب کی محفل کی ہے۔ پتہ یہ چلا مسلمانوں کہ انہوں نے محفل کی ہے، ان کے جو بھی احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، سبھی کی شرکت ہو رہی ہے۔ اب انہوں نے جو کھانا کھلایا ہے، ایک ایک دانے کا بھی ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ کہا کہ ایک گھوڑے کی مثال میرے آقا نبی کونین نے حدیث شریف میں دی ہے کہ اگر آدمی گھوڑا پالے تو کہتے ہیں کہ گھوڑا پالنا اس کے لیے باعث ثواب ہے، اور گھوڑا پالنا اس کے لیے دنیا میں ہی اچھا ہے، اور گھوڑا پالنا اس کے لیے اوبال ہے۔ گھوڑا پالنے جب ثواب کب ہوگا؟ ثواب جب ہوگا کہ اگر وہ اس نیت سے پالے کہ ایسے ہم جہاد کریں گے، اس نیت سے پالے کہ اللہ کے راستے میں ہم اس گھوڑے کو جب بھی ضرورت پڑے گی استعمال کریں گے۔ تو پتا چلا کہ اگر وہ گھوڑا اس نیت سے پالنا ہے تو اگر وہ گھوڑا چل رہا ہے، گھاس کھا رہا ہے، تب بھی اللہ اس کو نیکی عطا فرمائے گا۔ گھوڑا اگر دریا سے پانی پی رہا ہے تو اس کے بدلے میں بھی اللہ اسے نیکی عطا فرمائے گا۔ گھوڑا اگر چل رہا ہے تو اللہ اس کے صدقے میں بھی اسے نیکی عطا فرمائے گا۔ اور ایک بندہ اس لیے گھوڑا پالتا ہے تاکہ اس سے ہم نفع دنیا میں اٹھائیں تو اس کے لیے دنیا میں فائدہ ہے، لیکن اگر گھوڑا اس لیے پال رہا ہے کہ اس کے ذریعے لوگوں کے درمیان میں فخر سے میں کہوں گا میرے پاس بہت بڑا گھوڑا، بڑا عجیب و شان، بڑا خوبصورت گھوڑا ہے، اور اس کے بعد اس کے ذریعے میں روب و دبدبہ قائم کر کے اور جو کمزور ہیں ان کے اوپر ظلم کروں گا، تو کہا گیا ہے ایسے لوگوں کے لیے وہ گھوڑا اوبال ہے۔ تو پتہ چلا مسلمانوں ایک ہی چیز ہے، لیکن اس ایک چیز سے آدمی کو ثواب ملنا ہے اور اس ایک چیز سے آدمی کو گناہ ملنا ہے۔ یہ موبائل کی چند دن کی زندگی میں ہمیں اور آپ کو اس چیز کا انتخاب کرنا ہے کہ قبر میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے کون سے اعمال ہیں۔ اگر آپ اس کا جائزہ لوگے تو یاد رکھو مسلمانوں، آپ کے لیے یہ ہوگا کہ آپ نماز کی پابندی کرو گے، رمضان کے مہینوں کے روزے رکھو گے، اگر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی کرو گے۔ اے مسلمانوں، ہماری آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اور آپ اپنے رب کو راضی کر لیں۔ دنیا کیا کہہ رہی ہے، دنیا کیا کر رہی ہے، ایک مسلمان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کا بھائی کیا کر رہا ہے، اس کا باپ کیا کر رہا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ اس کے رسول کی رضا کس میں ہے، اللہ اس کے رسول کو راضی کر لے۔ اگر تیرے لیے یہ دن آ گئے تو یاد رکھو تیرے لیے کامیابی کے دن ہوں گے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانگے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ چلتے چلتے آخری بات عرض کر دوں، ہم اور آپ کا دل نیکیوں میں لگتا کیوں نہیں؟ بھلائی کی طرف ہمارا قدم اٹھتا کیوں نہیں؟ مسجد میں آپ پہنچتے ہو، اس ٹائم پہنچتے ہو جب خطبہ کا وقت ہوتا ہے۔ مسجد اگر دور ہے تو آپ سوچتے ہو کوئی جان ہی نہیں پائے گا۔ جمعہ کے دن بہت سے لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہی نہیں، اور جو نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں وہ خطبہ کے وقت پہنچتے ہیں کہ جب مولوی یار محمد صاحب خطبہ پڑھ لیں اس وقت پہنچے، اور سب سے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب وہاں پیچھے بیٹھتے ہیں، جیسے 2 رکعت ختم ہوتی ہے اس کے بعد پیچھے واپس چلے آتے۔ لگتا یہ ہے کہ جیسے گئے تھے بس ایک رسم ادا کرنے کے لیے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، اور اس کے بعد جو لوگ پہلے پہنچ بھی جاتے ہیں، پتہ لگتا ہے آگے آدھے لوگ آؤں رہے ہیں مسجد میں، اور آدھے لوگ ایسے ہیں کہ جو کسی اور دنیا کی سیر کر رہے ہیں۔ اگر امام صاحب کہیں تقریر میں 2 منٹ زیادہ کر لیے تو کس لوگوں کا تیور چڑھ جاتا ہے، کیسا امام ہے؟ وصول کے پابند ہونے چاہیے۔ او نادان، تو ایک امام کو 2 منٹ تقریر واضح و نصیحت زیادہ ہو گئی تو سوچتا ہے کہ وصول کے پابند ہو جائیں، اور تجھ سے پتہ نہیں کتنی نمازیں قضا ہو رہی ہیں، تو وصول کا پابند کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو بھی تو وصول کا پابند ہو جا۔ 2 منٹ
अगर ज्यादा हो जाए तो उसूल दिलाया जा रहा है, और तुझसे दो नहीं बल्कि तमाम उम्र की तेरी नमाजें कज़ा हो गई हैं, तेरे उसूल कहाँ चले गए? सही मानों में उसूल का पाबंद वो है जो अपन वक्ता नमाज का पाबंद। वाह वाह वाह, बहुत। और वहाँ वो लोग उसूल की पाबंदी दिखाते हैं जिनके सुबह शाम चौराहों पर बैठकर गपशप में गुजरते हैं, 10 चाय पीकर आते हैं घर और कहते हैं आज 10 चाय मैंने पी डाली है। 10 चाय पीने को कमाल समझते हैं। 10 चाय अगर होटल पे हमने पी लिया है तो बड़ा कमाल वाला काम किया है। और उसके बाद 1 महीना के बाद पता चलता है एसिडिटी हो गई, गैस हो गया है। अब हकीम ढूंढ रहे हैं, इमाम साहब के पास पहुँचेगा हकीम साहब, इमाम साहब कोई हकीम बताइए, कोई दवा बताइए। अब तो बड़ा मुश्किल ये हो गया है कि कोई बात हो जाती है तो सारा नज़ला है इमाम साहब पे उतरता है, मौलवी साहब पे उतरता है। ये बड़ा मुश्किल है। कोई मामला हो तो बस मौलवी साहब जाने। अब पहुँचते हैं मौलवी साहब कोई नुस्खा बताइए। अगर इमाम साहब ने कह दिया भाई अरे कोई हकीम है, कहीं अरे कैसे मौलाना आप है कोई दवा नहीं जानते। लगता यह है कि मौलाना हो तो वो हकीम भी हो, नुस्खा भी जाने। खैर अब ये जब गैस के मरीज हो गए, एक साहब एक जगह मिला शरीफ में गया मोहम्मद वकील साहब, तो एक साहब चल रहे थे इसे उधर से उधर इधर से उधर महफिल में बाहर ऐसे चल रहे थे। तो उस टाइम तो हमने कुछ नहीं कहा। बाद में जब मैं आई क़यामगाह पे मिलने के लिए तो मैंने कहा भाई आप चलते ही रहे। कहा जब क्या करूं, दिल मान नहीं रहा था कि महफिल से चला जाऊं, लेकिन मैं बहुत बड़ा गैस का मरीज़ हूँ। जब बैठता हूँ तो मुझे कब्ज़ हो जाता है, तो इसलिए मैं खड़े होकर चल चल के सुन रहा था। अल्लाह ताला हम सबको इस मर्ज़ से महफूज फरमाए, वरना चरखुर व आला हाल ये हो जाएगा कि आदमी चलता ही रहे, बैठ न पाए। तो अब ये चाय आपने पी लिया है, एक तो आपने इतनी गुफ्तगू कर ली है कि वैसे आपका हाजमा ख़राब हो गया, इसलिए कि उस गुफ्तगू में आपने कोई खैर की बात नहीं की है। अगर तबसरा किया है तो अपने इमाम के कुर्ते पे तबसरा किया है, अगर तबसरा किया है तो अपने इमाम के टोपी पे तबसरा किया है, अगर तबसरा किया है तो अपने इमाम की मोटरसाइकिल पे तबसरा किया है, अगर तबसरा किया है तो अपने इमाम के रुमाल पे तबसरा किया है, अगर तबसरा किया है तो अपने इमाम के मकान पे तबसरा किया है, अगर तूने तबसरा किया है तो अपने इमाम के इल्म पे तबसरा किया है, अगर तबसरा किया है तो इमाम की क़िरात पे तबसरा किया है, अगर तबसरा किया है तो इमाम की तकरीर पे तबसरा किया है। तुम 5-6 घंटे होटल में बैठे रहे, लेकिन कोई अगर आपकी गुफ्तगू का महवर रहा है तो इमाम साहब की जिंदगी रही है। ए नादान, तूने तो अपनी गुफ्तगू का जो महवर बनाया है, जब तू अपने इमाम की इज्जत ताज़ीम नहीं करेगा तो फरमाया गया है जो अपने बड़ों की ताज़ीम नहीं करेगा वो कौम ज़लील और रुस्वा कर दी जाएगी। आज हम ज़लील हो रहे हैं, आज हम रुस्वा हो रहे हैं, और उसके बाद कह रहे हैं दुआ की जाए, दुआ की जाए। और चड्ढा पहनने वाला जब कोई दुआ की जाएगी वो आमीन कहेगा तो क्या हमारी दुआ कबूल की जाएगी? अरे चड्ढा पहनने वाला अगर आमीन भी कह देगा, दुआ कबूल होने वाली होगी तो दुआ रद्द कर दी जाएगी। इसलिए कि दुआ उसकी कबूल की जाती है जिसकी ज़बान पाक हो, मुसलमानों, जिसकी फिक्र पाक हो, जिसके ख्यालात पाक हो। हमारा तो हाल ये है कि हमें पता ही नहीं है कि हमने कोई ज़बान से अपनी खैर की बात कभी की हो। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम और आप दिल लगाएं, जब कहीं भी नेकी की महफिल में बैठे, जब अल्लाह के घर में खाने खुदा में जाए तो इमाम साहब जो कह रहे हैं गौर से सुने। हो सकता है कोई गुफ्तगू ऐसी हो कि इमाम साहब की बात हमारे दिल में लग जाए और आज ही हम अपने दिल में इनकलाब पैदा करें, आज ही तौबा इस्तिग़फ़ार कर लें, आज ही ताइब हो जाए। अभी तक जो मेरे कदम गोंडा की तरफ नमाज के वक्त उठते थे, अब वो हमारे कदम गोंडा की तरफ ना उठकर खाने खुदा की तरफ चलने लगे। अगर तूने ये जिंदगी में अपने इनकलाब ला दिया मुसलमानों, तो याद रखो तुम्हारे लिए कामयाबी है, तुम्हारे लिए कामरानी है। तो हमारा दिल क्यों नहीं लगता है? एक मुख्तसर वाक़े के जरिए समाप्त करें अपनी बात, हम ख़त्म करें। कहते हैं एक बुजुर्ग हैं, उनके एक मुरीद मुहिब हैं, और वो बड़े नेक, बड़े मुहिब, उनके बड़े हैं। कहते हैं कि वो आदमी हमेशा बस ये सोचता है कि कब कोई नेकी कर लूँ, कब कोई नेकी कर लूँ। एक जगह वो मुलाजिम हैं, कहते हैं कि अपने पीर से एक बार अपने उस वक्त के बुजुर्ग से कहा कि हुजूर बात समझ में नहीं आती है, कैसे लोग हैं जिनका दिल अल्लाह की बंदगी में नहीं लगता? ये कैसे लोग हैं जो दुनियादार होते जा रहे हैं? ये कैसे लोग हैं जिन्हें सोचते हैं बस माल कमाए दुनिया से आसूदा नहीं हो रहे हैं? ये मेरे हुजूर बात समझ में नहीं आ रही है, लोग कैसे हैं? कहते हैं कि पीर ने कहा जब वक्त आएगा बता दूंगा। वक्त गुजरता रहा, बस बार बार शिकायत करते हैं हुजूर बात समझ में नहीं आ रही है। ये दुनियादार लोग बस इसी मगन में हैं कि अब अच्छा मकान बना ले, जबकि इनको मालूम है मकान चंद दिन रहना है, हमारी मंजिल तो कब्र की मंजिल है, और उस कब्र की मंजिल में मुसलमानों हमें और आपको जाना है। चंद दिन का मकान, चंद दिन रहने के लिए हम जब मकान बनवाते
बनवाते हैं तो अपने मिस्त्री से कहते हैं कि मिस्त्री साहब, इंजीनियर साहब, मकान की बुनियाद बहुत मजबूत होनी चाहिए, कम से कम 100 साल चले, जबकि उसे रहना है 10-20 साल, 25 साल, 30 साल, लेकिन कहता है 100 साल मजबूत बुनियाद डाली जाए। ए मुसलमानों, तूने 100 साल मजबूत बुनियाद तो बनवा ली, मकान डलवा दी है मकान के लिए, लेकिन क्या तुझे पता है कि तेरी रूह कब निकल जाए? और जो आपके लिए सही मानों में एक मंजिल है वो कब्र की मंजिल है, उस कब्र की मंजिल में जाने के लिए तुझे पास इसके रसूल की चाशनी होनी चाहिए, तेरे पास इसके रसूल की दौलत होनी चाहिए, तेरे पास इसके रसूल मोहब्बत रसूल का सरमाया होना चाहिए, तेरी पेशानियां सजदों की सज से सजी होनी चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी ख्याल किया है अपने मकान की मजबूती के लिए इतना एहतमाम क्या है, लेकिन कब्र में की तैयारी हमारे पास क्या है? बरेली के इमाम की बारगाह में चाहोगे तो बरेली के इमाम तुम्हें पैगाम देंगे, इसके रसूल से अपने सीने को सजा ले। और दुनिया वाले तेरे लिए तारीख गड्ढा खोदे हैं, लेकिन जब तेरा लाशा चलेगा तो ये कहता हुआ जाएगा, लहद में इसके रुखे सह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। ए मुसलमानों, तारीख गड्ढा होगा और उस गड्ढे में हमें जाना होगा, तो हमारे लिए उसकी तैयारी क्या है मुसलमानों? हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। पीर ने कहा, आप जा रहे हो जहाँ मजदूरी के लिए, तो आज जाकर बहाना कर देना, मिला कर देना कि हम बीमार हैं। उसके बाद दूसरे दिन मिला, उसने बहाना किया। कहते हैं कि जब वो 2 दिन की मजदूरी लेकर आया और लाकर वो घर गल्ला रखा, खाना बना खाया, तो जो उसने 2 दिन की मजदूरी से गल्ला लाकर घर में रखा था, खाना खाया, तो खाते ही अब उसके अंदर तसाहुली काहली आने लगी। अब उसका दिल दुनिया में नहीं, अब उसका दिल दीन के में नहीं लग रहा है, दुनिया में लग रहा है। अब वो अपने पड़ोसी का मकान देख रहा है कि कैसे मैं अपने पड़ोसी के मकान की तरह अपना मकान बना लूं, कैसे मैं बैंक बैलेंस कर लूं। अब वो हमेशा इस फिक्र में रहता है कहाँ से कितना माल आ जाए, मैं अपने लिए उसको इकट्ठा करूं। ये दिन रात सोचता रहा, सोच रहा है। उधर वो जहाँ मुलाजिम था, जहाँ मजदूरी करता था, वहाँ जाने में आना कानी करने लगा। अब वहाँ कोई ना कोई बहाना कर देता, पूरी मजदूरी ले आता। कहते हैं कि अब उसका दिल दुनिया में लग रहा है, दिन में नहीं लग रहा है। अब अल्लाह की बंदगी के लिए उसके पास वक्त नहीं है। कहते हैं जब ये हालात पीर ने देखा तो चूंकि पीर सादिक थे मुसलमानों, एक जो सच्चा पीर होता है उस पीर की पहचान यही होती है कि वो जब उसके मुरीद बिगड़ने लगते हैं तो वहाँ दस्तगिरी करता है। आज ताजु शरिया की जात हमारे दरमियान में नहीं है, लेकिन जो लोग उनके सच्चे मुरीद हैं, जब ताजु शरिया की बात आ जाएगी तो सोचेंगे मेरे पीर ने मना किया है, वही वो वापस होंगे और कहेंगे जो मेरे पीर ने रास्ता बताया उसी रास्ते पे चले। तो एक सच्चे पीर की पहचान यही होती है मुसलमानों कि जब पीर मुरीद बिगड़ने लगता है तो पीर की रूहानियत उसकी दस्तगिरी करती है। और इस ऐसे पीर जब अपने मुरीद को अपने दामन में लेते हैं तो ये नहीं कहते हैं कहो फला का मैं मुरीद हूँ, नहीं, बल्कि कहते हैं कहो मैंने अपना हाथ गौस आजम के हाथ में दिया। इसलिए कि पीर इशारा कर रहा है कि अब ये मेरा मुरीद अगर परेशान होगा तो गौस आजम इसकी दस्तगिरी करेंगे। तो कहते हैं मुरीद पीर ने जब देखा मेरा मुरीद अब दुनियादार होता जा रहा है, बुलाया एक दिन और कहा तूने कई बार मुझसे सवाल किया था ना कि ये लोग कैसे दुनियादार है, कैसे लोग दुनिया के लिए मन मिट रहे हैं। हमें देखिए हुजूर, मेरे दिल में कहीं दुनिया का रुझान नहीं है। ये लोग कैसे हैं जो दुनिया के लिए हवस इनके अंदर लालच है, दुनिया कमा रहे हैं, परेशान है दुनिया में। तो आपने फरमाया तूने कई बार सवाल किया था, मैंने उसी के लिए तुझसे कहा था कि 2 दिन तू जाना और आराम करना, और जब तेरे मालिक ने तुझे मजदूरी दी तो सही मानों में तू उसका हकदार नहीं था। इसलिए कि मजदूरी जब तू करेगा तभी उस अपनी मजदूरी की उजरत का हकदार होगा। लेकिन तेरे मालिक ने तेरी वफादारी की बुनियाद पर कि मेरा माँ बड़ा ये जो मेरा नौकर है, मेरा मजदूर है, बड़ा मेरा वफादार, हमेशा वफादारी के साथ काम करता रहा, उसने तेरा पैसा काटा नहीं, तुझे मजदूरी दी है, लेकिन तेरे लिए जायज़ नहीं था। एक मालिक के लिए ज़रूरी है कि जब उसके यहाँ कोई मजदूरी करे तो उसका पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी अदा कर दे। और एक मजदूर की जिम्मेदारी बनती है जो काम उसने अपने जिम्मे लिया है उसे पूरा करे, और उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने मालिक के साथ गद्दारी न करे, वफादारी करे। तो उसने जब इस तरह किया था तो जो उसके लिए दुरुस्त नहीं था, कहा पीर ने कि तू वो लेकर माल आया, उससे गल्ला खरीदा और उसका जो खाना तूने खाया तेरे रगों में गया, तो अब तेरे अंदर तसाहुली काहली आ गई। तो उस मुरीद ने कहा हुजूर 2 दिन का ये हाल है कि हम दुनियादार होते होते चले गए। तो उनके पीर ने कहा था हाँ यही तो है, मैं तुझे दिखाना चाह रहा था। जब तूने 2 दिन गलत तरीके से ग़िज़ा खाई और जब तूने गलत चीज खाई और तेरे लिए वो जायज नहीं
था तो तेरा दिल दुनिया की तरफ लगने लगा, दीन से तू दूर होता चला गया। और उसके बारे में ख्याल रख, जो हराम खाते हैं और वो हराम खा के अपने बच्चों को भी खिलाते हैं, कमाते हैं, उनका हाल क्या होगा। इसलिए रिस्क हलाल जरूरी है। अगर इसके हलाल खाएंगे तो हमारा दिल दुनिया में नहीं लगेगा, दीन में लगेगा। अगर इसके हलाल खाएंगे तो हमारा दिल किसी सिनेमा में नहीं लगेगा, बल्कि महफिल रसूल में लगेगा। जब हम इसके हलाल खाएंगे तो मोबाइल में गाना नहीं सुनेंगे, बल्कि हम नाते रसूल सुनेंगे। अगर हम और आप सही मानों में इसके हलाल के लिए पाबंद हो जाएं तो इंशाअल्लाह ताला हमारे दरमियान में वो जो बुराइयां हैं इंशाअल्लाह जरूर खत्म होंगी। सबसे जरूरी चीज ये है कि अगर बंदा रिज़्क़ हलाल खाता है तो अल्लाह उसकी दुआएं कबूल फरमाता है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है हम सबको अल्लाह करीम रिज़्क़ हलाल कमाने खाने की तौफीक अता फरमाए। जो अच्छी बातें हुई हैं पहले हमको फिर आपको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।